26th of November 2017, the day I lost my mom, my Jaan, my everything. She was the one who gave me the hopes, who gave me the aspiration, who gave me the strength, who gave me the will, who gave me the reason to go beyond limits, to just have crazy dreams. Because it all started to bring a smile on my mom's face, on my dad's face, to give them the pride, to give them a life without struggles, to give them a life of freedom. And that is where it was started. So the day she left us, definitely it have been very difficult, very ruthless, and I think this is something which is going to go with us till we are continuing this life. I miss you, mom, and you know it. There was no one who can come even near to you. I still love you the same. I still miss you the same. I still feel like काश थोड़े और टाइम. Definitely being a son, though कितने भी मैच्योर हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, but still I miss you. And no one, you know, शायद कोई आसपास भी नहीं आया है वो void को फील करने के लिए. And I think शायद मैंने सोच लिया था जब तुम चले गए थे कि तुम चले गए, अब दूसरा तुम कभी नहीं आ पाएगा जीवन में. Because हर चीज़ की शुरुआत, शायद कुछ नया करना हो ज़िंदगी में, या कोई नया प्लान, कुछ भी, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मैं तो सब आपसे ही डिस्कस करता था, मैं तो सब आपको ही बताता था. शायद 5 साल 10 साल बाद ज़िंदगी जब बदलेगी तो अपन क्या करेंगे वो भी शायद मैं आपसे ही डिस्कस करता था. एंड दैट इज़ द रीज़न. वो बोलते भी थे ना, तरुण के लिए मम्मी और मम्मी के लिए तरुण. इट वॉज लाइक इनसेपरेबल. वी आर टुडे ऑल्सो इनसेपरेबल, नो डाउट. I miss you like crazy. I want you by my side. There have been days where I have been just flat on the floor and just didn't needed anything. Because आज बैठ के जब पूछता हूँ उसको तो पता चल जाता है. मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पीनेस वही था जब आप में और डैड बैठ के बात करते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, लाइफ के बारे में बात करते थे, स्ट्रगल के बारे में बात करते थे, कैसे इस फेज से निकलेंगे उस बारे में बात करते थे. उससे ज़्यादा हैप्पीनेस, वैसा यूफोरिया ना मैंने 26 नवंबर 2017 के बाद फील किया है, और अब लगता भी नहीं है मुझे कि वो लेवल का यूफोरिया मैं फील करूँगा. एंड विद टाइम आई अंडरस्टूड दैट द डे यू लेफ्ट दिस प्लेस, सम पार्ट ऑफ मी हैव गॉन विद यू. सच वाज द बॉन्ड बिटवीन अस. आज 4 साल हो गए हैं. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंस. आई स्टिल मिस यू द सेम. आई स्टिल लव यू द सेम. आई स्टिल विश दैट काश यू कुड हैव बीन बाय माय साइड. काश आई कुड हैव been able to give you something better in life. Kash. But बात यही है. But before I get into all this, there is something for the viewers. And yes, this video will get difficult as you proceed ahead. So only the ones with the heavy heart dare to hang until the end of the video. Because in this video, in the later part, I am going to read this diary. Some part, some pages of this diary which I started writing the day I lost my mom. Because the day I lost her, I was just not able to show my emotions. I was just not able to show the tears. I was just not able to show the pain, what I am going through, because she have left this place. So most of the things have been stored in here. Some things are stored here, and some roars are waiting to come out, roar like, yes, finally I did it. So yeah, in the later part. But before I get into this, I want to say some things, and that is, I want to take you to the year 2017, and I want to make you see how the life works, and you have to just admire life, accept it, hope for कि हाँ चीज़ें better ही होगी, and just have good positive attitude, a good vibe, motivation, motivated, a smile on your face. It helps. 2017 जनवरी का मंथ था. मेरे सीए लेवल के सेकेंड एग्जाम आईपीसीसी का रिजल्ट आया था. आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया था और मेरा एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था. बट जो ग्रुप मैंने क्लियर किया था, ग्रुप 2, वो बहुत डिफिकल्ट ग्रुप है, और ऐसा होता है कि उसमें लोगों को बहुत टाइम लग जाता है क्लियर होने को, अगर एक बार नहीं होता तो. एंड आई क्लियर दैट ग्रुप फर्स्ट. सो वो एक खुशी थी शायद घर वालों को, मुझे इतनी नहीं, बट यस घर पे एक था कि चल कुछ तो पास हुआ, एक रह गया तो एक पास हो गया, नेक्स्ट टाइम ये भी क्लियर हो जाएगा. देन केम द मंथ ऑफ मे, जब
वो बचे हुए ग्रुप के एग्ज़ाम था, वो दिया। आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 1st of August 2017। रिजल्ट आया, मैं क्लियर हो गया। आई शाउटेड इन जॉय। द मॉम was sitting in front of me, she came, hugged me, she had tears in her eyes because we knew कि वो जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी। वो रात बैठना, पढ़ाई करना, इधर ना जाना उधर ना जाना, अपने आप को घर में बंद करके रख देना, मॉम से भी इतनी बात ना कर पाना, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। एंड शी हैव बीन थ्रू इन दिस। कभी वो ऐसे ही देखते देखते ही सो जाते थे एंड स्टफ। सो शी न्यू हाउ टफ इट इज, हाउ टफ लाइफ हैव बीन फॉर अस। दैट हग आज तक नहीं भुलाओ बिकॉज वही तो एक लास्ट हग हो गई थी इवेंचुअली फ्रॉम माई मॉम। दैट वॉज द मोमेंट ऑफ जॉय। मी, माई मॉम, माई डैड, आई स्टिल हैव द पिक्चर। हम एक दूसरे को कलाकंद खिला रहे थे एंड थैंकफुली आई कैप्चर्ड इट बिकॉज दैट पिक्चर टेल्स दैट क्या था हमारे लिए एक दूसरे का साथ क्या मैटर करता था, कितना मीन करता था और कितना क्रूशल था। दैट वॉज द बेस्ट डे for all of us, not only for me, for my mom, for my dad, for all of us. It was one of the best day because पता था अब काम करेंगे, आर्टिकलशिप करेंगे, थोड़ा सा पैसा कमाएंगे, भले बहुत थोड़ा सा होगा बट फाइनली मैं कुछ पैसा तो कमाऊंगा, घर पे कुछ कंट्रीब्यूट तो करूंगा और यहाँ से चीज़ें शायद बेटर ही होगी। 16 अगस्त से ऑफिस भी ज्वाइन कर दी, इंटरव्यू भी दे दिया। 16 अगस्त को फर्स्ट डे था, ऑफिस में अच्छा काम भी मिलने लग गया। जीएसटी नया नया आया था, 1 जुलाई से मैं जीएसटी में आ गया था। थोड़ा बहुत ऑडिट सीजन में ऑडिट भी किया। आई स्टिल रिमेंबर 17 नवंबर से मैंने ऑफिस में छुट्टी ली थी बिकॉज मेरा बीकॉम का एग्जाम स्टार्ट हो रहा था। प्लान नहीं था बट ऐसा लगा कि बहुत सारा काम कर लिया 2-3 महीने में, चलो रेस्ट ले लेते इसी बहाने। मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा खुद को आराम देंगे। आई थिंक 18, 19, 20, 21 नवंबर हैव बीन द बेस्ट डेज व्हिच आई स्पेंट विद माय मॉम। वही पुरानी बातें, वो मेरे को बच्चे जैसे सुलाते थे, पता नहीं मेरे को ये सब क्यों हो रहा था एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दिस। बीकॉम की तो इतनी पढ़ाई करनी नहीं होती, तो बस पूरा दिन मॉम के साथ बाहर, रात को डैड के साथ बाहर, मस्ती, थोड़ा बहुत पढ़ाई एंड स्टफ। इट वाज बेस्ट ऑफ द टाइम। और शायद 22-23 नवंबर आते आते तो मैंने खुद को भूल दिया था कि 20 साल हो गए मेरे को। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। देन केम 26th of November 2017. I still remember it was Sunday, early morning, 6 o'clock. I lost her. महीना साल खत्म होने को 35-36 डेज बचे थे। I lost my mom. So 90% of the year हो चुका था। I thought this is the best year. We are getting the best of the days. Finally मेरे सेकेंड लेवल के एग्जाम्स क्लियर हो गए, मेरा जॉब पे लग गया। अब फैमिली में बस हैप्पीनेस आएगी। ये मेरा बेस्ट ईयर है लाइफ का, ये मेरा बेस्ट ईयर है अचीवमेंट का। I lost my mom. 31 दिसंबर को मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं था कि ये वन ऑफ द बेस्ट ईयर था या वन ऑफ द हॉरिफाइड ईयर था बिकॉज कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी बट जो 26 नवंबर को हुआ था आई थिंक वो बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत टफ था, बहुत चैलेंजिंग था। वो तो आज भी चैलेंजेस देता है। मैसेज सिंपल है, लाइफ के पास अपने प्लान्स है। जिस बिकॉज तुम्हारे कुछ दिन अच्छे चले गए ये मत सोचो कि अब कुछ बुरा नहीं हो सकता, और जिस बिकॉज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया ये मत भूलो कि कुछ अच्छा भी हुआ था। यू हैव टू हैव दैट राइट काइंड ऑफ बैलेंस। यस, यू हैव टू एडमायर व्हाटएवर लाइफ इज थ्रोइंग एट यू। शायद 26 नवंबर के बाद मैं वो 1 अगस्त 2017 की हक को ज़्यादा चेरिश करता हूँ कि चल भाई एक हक तो मिल गई मॉम से, क्लियर होने पे एग्ज़ाम, एक प्राइड तो देख ली मॉम के आंखों में। एक बार शायद मैंने स्टाइपेंड तो लाके रख दिया मॉम के हाथों में, शायद उस सब के पहले ये हो जाता तो क्या पता आज मैं कौन से लेवल पे या कहाँ फाइट कर रहा होता या नहीं भी कर पा रहा होता। सो इवेंचुअली जब बिगर पिक्चर पे फोकस करोगे लगेगा कि जो कर रहा है लाइफ सही कर रहा है। शायद मेरे मॉम के लिए सिचुएशंस और डिफिकल्ट हो जाती बिकॉज शी वॉज अ पर्सन जो सफ़र कर रहे थे बहुत बीमारी से, और अब मैं भी जॉब पे, डैड भी जॉब पे, पूरा दिन अकेले रहना। आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर एंड दैट इज द रीजन whenever I talk about my mom there is a smile on my face because I never took her granted। I knew कि हो सकता है कभी कुछ हो जाए, हो सकता है कभी कुछ हो जाए। I always gave my best, whatever I had I gave it for my mom। We knew it, me and my dad, कि yes जो करना है मॉम के लिए जो होगा वो करेंगे, पूरी जान लगा देंगे और हमेशा रहेंगे। एंड आई थिंक हमने वही किया 20 साल। एंड आई थिंक
कुछ साल तो शायद डैड ने जो किया है उसकी वजह से मॉम और एक्स्ट्रा रह गए। शायद मेरे को लगता है मेरे डैड है उनके बदले कोई और होता तो आई थिंक शायद मैं बहुत कम साल मॉम के साथ रह पाता। हैट्स ऑफ टू यू डैड, जो आपने किया, जो आप आज भी करते हो, जस्ट अमेजिंग। एंड दैट इज द रीजन व्हेनेवर आई रिमेंबर माय मॉम देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस, बिकॉज आई न्यू कि कितनी मेमोरीज है, दो वो कैप्चर्ड नहीं है बट बहुत सारी मेमोरीज है। बहुत मज़ा किया है, जितना हुआ एक साथ रहे हैं, बहुत एक दूसरे का ध्यान दिया है, बहुत कुछ एक दूसरे के लिए किया है, और कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ठीक है ना पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पाए बट इमोशनली बहुत कुछ किया है। आई लव यू माई मॉम एंड दैट इज़ द रीज़न। ये सीख देनी थी कि हो सकता है शायद कोई एक इंसिडेंट तुम्हें बता दे कि यार लाइफ बकवास है, बट बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं जो तुम्हें बताएंगे कि लाइफ इज़ द बेस्ट गिफ्ट। मत छेड़ो लाइफ को, मत करो मजाक, लाइफ से अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं है। यू आर सर्वाइविंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे बेटर, इससे बेस्ट गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। एडमायर, बी ग्रेटफुल, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि भाई मेरे को 20 साल कुछ महीने और कुछ दिन तो दिए, अगर वो भी नहीं देते तो क्या पता शायद आज यहाँ में खड़ा भी नहीं होता, शायद मेरे पास भी कॉन्फिडेंस भी नहीं होता वो। सो थैंक यू, अप्रिशिएट, एक्सेप्ट, जितना जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे उतना अपना बेस्ट दे पाओगे लाइफ। एंड बिफोर आई गेट इनटू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द वंस विद द वीक हार्ट कैन चूज टू जस्ट स्टॉप द वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो फर्स्ट टाइम आई एम taking the pain to read out. फर्स्ट पेज पे तो मेरे मॉम के अपने बहुत सारे नाम रखे, बिकॉज आई लव हर द मोस्ट। इसी उनके नाम है, माई मॉम, माई जान, के बाबू, वो मेरे बाबू थे, मैं उनका बाबू नहीं था, मैं वो मेरे बाबू थे। डिंगली, डबली, डबली, जमगुड़ी, जम्बूरी, जमजम गुड़ा, डमगुड़ा, बबलू, जबलू, बावला, बावली, बावलो। बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, इसलिए पूरा दिन टेंशन करने वाले। कभी इडली बोलता था, कभी पावो बोलता था, कभी पागो बोलता था, कभी पुटलो बोलता था, जो भी था। आई लव यू एंड आई मिस यू। 28th of November 2017, 2 days after I lost my mom. फर्स्ट टाइम जब मैंने को लिखा था मॉम के लिए, बिकॉज मैंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस तो नहीं किए थे, ना टीयर्स से, ना वर्ड्स से, ना कोई एक्शन लेके। So this was it. I'll just read few pages. Hi mommy, I'm actually not writing a diary. I'm doing this to talk to you. I'm doing this to pour my heart to you. On 26th of November 2017, world stopped for me. Everything was over. I had the worst nightmare ever possible in my life. On 26th of November 2017, my mama left me and she went very, 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 very far away from me. Today, this is 28th of November 2017. Still, I am not able to believe that my mama passed away. Still, I feel that no, she will come again. She will be back. I don't know I ever will be able to believe that my Jaan passed away. On 27th of November 2017, I had my TY BCom exams from 11 AM to 1:30 PM. And there was also the Pratna Sabha, the prayers of my mom from 11 AM to 1 PM. But I went to give exams because I knew one thing, that my mama would always have wanted me to give the exam. She would have never liked that I am not giving or appearing for exam. I don't know, my Jaan, how the life will go for me after not having your presence with me. आपको तो पता था ना मम्मा कि मैं आपसे कितना प्यार करता था। मेरे लिए सिर्फ आप ही की खुशी, आप ही की हंसी मैटर करती थी। आप थे इसलिए मैं था, आप गए, अब मैं कैसे रहूँ। एक बच्चे के लिए उसके माँ से ज़्यादा कीमती कोई नहीं होता। ना तो कोई माँ जितना प्यार कर सकता है, ना तो कोई माँ जितनी परवाह कर सकता है। I have one question to you, God.
माँ की तो कोई दूसरी रिप्लेसमेंट इस दुनिया में बनी नहीं है। आप तो मेरे मम्मी को अपने पास ले चले गए। क्या करूँ मैं अब? कैसे जीऊँ मैं अब? कौन करेगा मुझे मेरी जान जितना प्यार? क्या कोई दे सकता है मुझे ये सारे सवालों का जवाब? मम्मी, आपको तो पता था ना मुझे आपसे रोज़ कितनी बातें करनी होती थी। आपको तो पता था ना मुझे कुछ भी करने का मन होता सबसे पहले मैं आपको पूछता था, शायद बताता था। आपको तो पता था ना मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊँगा। आपको तो पता था ना आप मेरे लिए सबसे लाडले थे। आपको तो पता था ना आप मेरी जान थे। फिर भी आप कैसे चले गए मुझे छोड़ के, वो भी उनके सिर्फ एक आवाज़ पे, शायद वो पहली आवाज़ नहीं। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए चुना था मुझे आपको बहुत सारी खुशी देनी थी। मुझे आपको एक रानी के जैसे रखना था। मैंने CS इसलिए डिसाइड किया कि मैं आपको एक बहुत ही रॉयल लाइफ दे सकूं। मैंने LLB का भी इसलिए सोचा था ताकि मैं आपको इतनी खुशियाँ दे सकूं जो आज तक किसी बेटे ने अपनी माँ को नहीं दी। आप 5 साल रुक जाते यार मम्मा, मुझे आपको प्रिंसेस जैसा देखना था। मुझे आपको बस एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी स्माइल देनी थी जिसे मुझे लगता कि यस मैंने कुछ तो किया। अब कौन रात को 12 बजते ही चिल्लाएगा मोबाइल रख देना जल्दी, सो जाना जल्दी। मैं तो जाग ही रही हूँ, तुझे देख ही रही हूँ। एंड नहीं सोया ना तो डैडी को उठा के बोल दूँगी कि तुझे सोने के लिए बोले। कौन सुबह उठते ही मुझे चिल्लाएगा जल्दी तैयार हो जा, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, चाय पी ले, ब्रश कर ले, बात कर ले। कौन जब मैं ऑफिस के लिए निकलूँगा तब बोलेगा कि संभाल के जाना, ध्यान रखना, ट्रेन में ध्यान से चढ़ना, नाश्ता कर लेना, खाना अच्छे से खाना। कौन जब मैं नीचे पहुंच के बिल्डिंग के बाहर निकलने के पहले किसको ढूंढूंगा मैं विंडो पे? कौन मुझे स्माइल के साथ टाटा करेगा खिड़की से? किसको ऑफिस पहुंचने के पहले किसको मैं फ़ोन करके बोलूँगा कि मम्मी मैं ऑफिस पहुंच गया, आप कैसे हो, खाना खा लेना, ध्यान रखना? किसको बोलूँगा मैं? किसको मैं लंच ब्रेक में फ़ोन करके बोलूँगा कि मेरा लंच ब्रेक हो गया? किसको पूछूंगा यार मैं आप कैसे हो, आपने खाना क्या खाया, आप सोए थे क्या? आप टेंशन मत लेना, मैं खाना खा लूँगा, अभी आप सो जाना। किसको ऑफिस से छूट के मैं फ़ोन करूँगा और बोलूँगा मम्मी मैं निकल गया ऑफिस से? कौन मुझे बोलेगा संभाल के आना, धीरे धीरे आना, बिल्डिंग पहुँचते ही घर पर आ जाना, नीचे रुकना मत? कौन मुझे 5 मिनट भी लेट हो गया तो फ़ोन करेगा और पूछेगा किधर है, अभी तक आया नहीं? मैं बिल्डिंग में एंटर करूँगा और किसको ढूंढूंगा मैं खिड़की पे? मैं अगर नीचे किससे बात कर रहा हूँ तो कौन मुझे मिस कॉल देगा और बोलेगा घर आ जा? घर पर आते ही कौन बोलेगा मुझे जा बाथरूम में अपने पैर धो, कपड़े चेंज कर, खाना खा ले? खाने के बाद कौन पूछेगा मुझे आज ऑफिस में क्या हुआ? कौन मुझे अपने दिन भर की बातें बताएगा? आपको तो पता है ना आपकी एक स्माइल मुझ में इतनी सारी एनर्जी भर देती थी। आपका एक थोड़ा सा ग्लोइंग सा फेस मुझे मोटिवेट करता था। आप थे, आप मेरी जान थे, आप मेरी ज़िंदगी थे, आप मेरे लिए सब कुछ थे। आपको मैंने कभी मम्मी बोला ही नहीं। आप तो मेरे बावला, बावली, ढिंगली, बाबू, लड्डू, जबलू, जमकुड़ू, जबला, डबला, बबलू, पागो, पागो, जमकुड़ो और टेंशन में थे। आप ही तो मेरे भगवान थे। पता है मैं आपको हमेशा बोलता था मुझे मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे तो घर पर ही भगवान है ना। आपको मैं भैरू जी भी बुलाता था ना, मुझे क्या पता था आप सच में भैरू जी बन जाओगे। आपने जो किया है ज़िंदगी में कोई कभी मेरे लिए उतना नहीं कर पाएगा। मुझे इसी बात का गम है एंड रहेगा ही कि जो मुझे तुम्हें देना था वो मैं क्यों नहीं दे पाया यार। डिंगली तेरी बहुत याद आती है यार, तेरे बिना एक एक पल ऐसे कट रहा है जैसे हेल। आपको पता है मेरे पास इडली है लेकिन चटनी नहीं, शूज़ है लेकिन सॉक्स नहीं, पतंग है लेकिन मांझा नहीं, हार्ट है लेकिन बीट्स नहीं, तरुण है लेकिन तरुण की मम्मी नहीं। आई नो मम्मी आपकी नज़र मुझे ही ढूंढ रही है, आप ऊपर से भी मुझे ही देख रहे हो,
आप ऊपर से भी मेरे बारे में ही सोच रहे हो। मुझे रोना है, जी भर के रोना है, सब बाहर निकालना है। आप मुझे क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? आप मुझे क्यों रोने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो? आप मुझे क्यों अपने अंदर की बात बाहर निकालने नहीं दे रहे हो? प्लीज़ मम्मी, मुझे एक बार जी भर के रो लेने दो। आई नो मम्मी, आप मेरी ताकत थे, आप मेरी ताकत ही रहोगे। आप ना कभी मेरी कमज़ोरी थे, ना कभी बन सकते हो। आई विल डू द बेस्ट इन लाइफ। I'll give my daddy my inspiration, life of a prince. I'll complete each and every degree which I and my Jan dreamed of. I'll do every little thing which you wanted, my mom. I know your all desires, your dreams, etc. I'll never allow you to be my weakness and I'll not quit the life. आप मेरे strength थे, हो और आज strength ही रहोगे. I'll prove everyone that my mom was always my strength and I'll achieve everything which you wanted, my mom. I know you never ever wanted to be my weakness. And you are never my weakness. It's a tough phase, but I will face this, my Jan, and prove to the world that you are my strength. My love for you was way beyond par, so I will achieve everything, Babu. I know you are not allowing me to do anything which will weaken me. आपकी ज़रूरत के सामने मेरा सर आंखों पर। I'll never be repay what you have done for me, mom and dad. I'll never ever forget any of the things which you all have done for me. I'll always be there by your side, Dad. Trust me, I'll give my best. I'll fulfill all our dreams. I love you the most. है मम्मी, तेरे बच्चे ने सबसे ज़्यादा प्यार तुझसे ही किया है, क्योंकि तुम लड्डू थे ना। I'm starting to hate God because He has taken you away from me, यार। आप सीरियसली कितने अच्छे थे, आप कितने भोले थे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने दुनिया में एक ही वन पीस थे। मैं बहुत खुश नसीब था मम्मी कि मैं आपका बेटा था। आप जैसा बाबू कहाँ कोई और कैसे मिलेगा। याद करेगा तरुण आपको, लेकिन कुछ करके दिखाऊंगा। आपको पता है डिंगली, आपसे जितनी बातें करो ना उतनी कम है। आपकी आवाज़ इतनी मीठी थी, आपके बोल इतने प्यारे थे, पता नहीं कैसे बढ़ूंगा मैं इन सबसे आगे। आपकी बातें माशाअल्लाह थी। तरुण खापो, तरुण जिमजे पो, तरुण ध्यान રાખજે, तरुण अंबाले ने आई जे, तरुण पढ़ाई करजे, तरुण मोबाइल રાખજે पो, तरुण तरुण तरुण। अब कौन करेगा ये तरुण डिंगली? कौन कौन कौन? आज भी वो गीत याद है मुझे मम्मी। बस मैं बैठा ऊषा भाई, क्या करते हैं वो पूरा दिन? तरुण कटे तरुण कटे तरुण कटे, ओए रे। तरुण जिम पो, तरुण खापो, तरुण पग धोपा, तरुण गणेश रहे, तरुण घरे आओ। कौन है? और तरुण भी एक ही चीज करता था, उषा कटे उषा कटे उषा कटे, हुए रे। आपको भी मैंने ये बात बताई थी, बट भगवान को तो जरूर पता ही होगा ना ये बात। मैंने 17 नवंबर से 29 नवंबर तक ऑफिस से सिर्फ इसलिए छुट्टी ही थी ताकि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ, आपको लाड कर सकूँ। कभी सोच भी नहीं सकता था मैं, कभी नहीं, कि जो मैं टाइम आपके साथ रहने के लिए मांग रहा हूँ उस टाइम में आपको खो दूँगा। आई लव यू सो 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 मच मेरा बाबू लड्डू। आई मिस यू सो 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 मच मेरा डिंगली। बट आई नो वन थिंग, एंड आई नेवर लेट यू बी माई वीकनेस। आई वॉन्ट यू टू ओनली बी माई स्ट्रेंथ, माई जान। आई लव यू। आई लव यू। बहुत कुछ लिखा है, इससे ज़्यादा शायद मैं पढ़ने का होता। थैंक यू मॉम फॉर बीइंग बाय माई साइड, फॉर बीइंग माई मॉम, फॉर गिविंग मी द स्ट्रेंथ। आई नो आपने स्ट्रेंथ दिया है तभी मैं हर फेज से उठ पा रहा हूँ। लड़ूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा। आई होप यू आर प्राउड ऑफ मी। आई होप बहुत जल्दी मैं सीए बनूंगा। आई होप मेरे डैड को बहुत जल्दी वो फ्रीडम, वो टेंशन फ्री लाइफ दूंगा। आई लव यू।